Hi all, this is Sarika Tulsiani and I would like to welcome all of you in today's session. अब जैसे कि कैट हो चुका है, even the tentative answer key is out, so I'm sure all of you would have calculated your scores and you would have got a reality check कि which colleges or what percentile you would be getting and what are the assigned colleges with respect to those percentiles. IIMs क्रैक हो रहा है, नहीं हो रहा है, what are the other colleges, what are the other opportunities you have, I'm sure उसके बारे में आपने अच्छी खासी रिसर्च कर ली होगी. And even if the score is not very good, you don't need to bog down because we have a lot of exams lined up. So this is the exam season which has started. And CAT was only the first exam of the season. So you need to be happy because अगर आपने CAT के लिए prepare किया था, if you're good with your concepts, with your topics and everything, and for whatever reason अगर CAT में score नहीं भी आ पाया, so that is fine because आपने जो भी preparation किया है वो waste नहीं जाएगा. So you don't need to worry. वही preparation, वही चीजें आगे के एग्जाम्स में भी लगेंगी, तो वो प्रिपरेशन आप यूटिलाइज कर सकते हैं आगे की एग्जाम्स के लिए. So of course the strategies are going to be different, the attempts are going to be different, things are going to change, but conceptually हमको strong रहना ही पड़ेगा. So now that you know that SNAP is around the corner, 10th को, 18th को, 23rd को SNAP is scheduled. So to help you with the preparation strategy of SNAP, how should you crack the exam, how should you attempt the exam, what are the important topics, क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, that to answer all those questions I am making this video. So hope this video will be helpful to you guys. So I would just request इस वीडियो को पूरा देखना so that आपको एक complete idea मिल जाए with regards to strategy and with regards to why should you attempt SNAP. Okay, to begin with, सबसे पहली चीज क्या रहती है जब हम कैट देते हैं, हमारे ड्रीम कॉलेजेस होते हैं IIMs एंड सो ऑन. सबसे पहली चीज क्या देखते हैं? प्लेसमेंट्स देखते हैं, एक्सपोजर देखते हैं, the kind of networking you can do, the kind of people you will be meeting, the kind of faculties you will get. All those things are very, very beneficial, and that is the reason we always dream of getting into a good college. So if not IIM, Symbiosis are in the top 20 and top 30 colleges all over India. ठीक है, तो Symbiosis is a very good chance for you to get into a very good college and get your dream placements, dream companies, so on and so forth. तो सबसे पहले मैं आपको एक आइडिया दे देती हूँ, एक रियलिटी चेक दे देती हूँ. टॉप 5 कॉलेजेस कौन से हैं, फीस कितनी है, एवरेज सीटीसी कितनी है, हाईएस्ट सीटीसी कितनी है और उसके स्कोर्स क्या रहेंगे. ठीक है, सो दिस इज बेस्ड ऑन पास्ट ईयर्स डेटा, पास्ट फ्यू ईयर्स का डेटा एनालिसिस करने के बाद आई हैव कम टू दिस डेटा. सो द टॉप नॉच कॉलेज आई एम श्योर यू वुड बी नोइंग, इट इज SIBM पुणे. SIBM पुणे का फीस जाता है अराउंड 20 lakhs. ठीक है, इसका एवरेज CTC इज 23 lakhs, एवरेज CTC. ओके, हाईएस्ट CTC गोइंग अप टू 45.5 lakhs, which is nothing less than a dream. तो अगर IIM नहीं भी हुआ तो क्या फर्क पड़ता है, Symbiosis है ना. ठीक है, so if you can get into this college, you can still get the best of the placements. The second top notch college is SCHMRD, ये भी पुणे में है. इसका फीस इज 16 lakhs, एवरेज CTC जाता है 20 lakhs और हाईएस्ट CTC इंटरनेशनल गया है 61.5 lakhs और डोमेस्टिक गया है 35.5 lakhs. ठीक है, which is amazing. SIBM Bangalore, that's the third college. SIBM Pune is the top notch college. Third पे आता है SIBM Bangalore. फीस है इसकी 15 lakhs, एवरेज CTC है 12 lakhs और इसका हाईएस्ट पैकेज जाता है 26.54 lakhs. ठीक है, SIIB again the next college, fees 15 lakhs, average CTC 11.3 lakhs, highest CTC around 20 lakhs. SIOM Nasik, it is very well known for operations management and it is situated in Nasik. फीस इसकी 12 lakhs है, एवरेज CTC इसका 12 lakhs है और इसका हाईएस्ट पैकेज गया है 24.13 lakhs. तो आई एम श्योर if not anything else, this is definitely a very strong motivation for you to get into any of these Symbiosis colleges, right? Now, coming to the scores, so I have placed the data according to the past few years कि
अगर SIBM पुणे क्रैक करना है तो रॉ स्कोर जो एक्सपेक्टेड है इट इज अराउंड 41 to 43 मिनिमम, ठीक है, मिनिमम 41 to 43 स्कोर करना है आउट ऑफ 60. I am sure कि you know the weightage of the exam. The weightage of the exam lasts for 60 minutes. 60 minutes, 60 questions. The good part is there is no sectional cutoff. ठीक है, जैसे कैट में होता है, जैसे एनमैट में होता है, सेक्शनल कट ऑफ है, स्नैप में सेक्शनल कट ऑफ नहीं है. तो whatever section you are very strong at, you can obviously score more there and try to clear the sectional cutoff. ठीक है, तो 60 क्वेश्चंस में से 41 to 43 is expected for SIBM Pune. तो that would go around 98.2 percentile. SCH-MRD का स्कोर 39 to 41, 98 percentile. SIBM Bangalore is 38, 39, 92 percentile. SIIB is 35 to 37, 90 percentile. And SIOM Nasik 35, 36 raw score, 85 to 87 percentile. Mind you, this data is given as per open category. ठीक है, तो जो अदर कैटेगरीज हैं SC, ST एंड ऑल दैट, उनके लिए ये कट ऑफ्स काफी ज्यादा ड्रॉप हो जाते हैं. सो यू डोंट नीड टू वरी, ये ओपन कैटेगरी के कट ऑफ्स हैं. वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सिम्बायोसिस में ओबीसी कैटेगरी नहीं होता है. सो इफ यू आर प्लानिंग एंड इफ यू आर इन ओबीसी कैटेगरी, यू नीड टू इंश्योर कि आपको ओपन के ही कट ऑफ्स रीच करने पड़ेंगे. देयर इज नो ओबीसी कैटेगरी. ठीक है, नाउ लेट्स लुक इनटू द डिटेल्स ऑफ द एग्जाम. कितना प्लस, कितना माइनस, कौन से टॉपिक्स हैं जो हमको करने पड़ेंगे, कौन से टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है. सो बिफोर दैट आई होप ऑल्सो यू गाइज नो दिस दैट you get a +1 and -0.25. So there is a negative marking, but that's a 1/4 negative marking and +1 if the answer is correct. ठीक है, now moving on to the sections. Yes, so this was the quant topic distribution in 2021. ठीक है, ये quant topic distribution था. यहाँ पे अगर आप देखोगे सबसे ज्यादा वेटेज जो था गाइस, सबसे ज्यादा वेटेज was on arithmetic. ठीक है, अराउंड 40 to 50% क्वेश्चन जो थे वो अरिथमेटिक के आते हैं. अब कैट में भी देखिए तो फिर 40% क्वेश्चन अरिथमेटिक पे ही आए थे. यहाँ पे भी मेजॉरिटी क्वेश्चन जो है वो अरिथमेटिक पे आएंगे. ठीक है, दैट्स 40 to 50% क्वेश्चन, दैट इज अराउंड 8 to 9 क्वेश्चन. सो क्वांट में टोटल आते हैं 20 क्वेश्चंस. ठीक है, तो क्वांट में देयर आर टोटल 20 क्वेश्चंस, उसमें से 8 to 9 क्वेश्चंस आर प्योर अरिथमेटिक क्वेश्चंस. ठीक है, अरिथमेटिक के बाद जो सेकंड हाईएस्ट वेटेज है दैट इज गिवन टू पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी. सो दैट्स परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, गोइंग फॉर अराउंड 4 to 5 क्वेश्चंस. ठीक है, सो 8 से 9 क्वेश्चंस और इवन 10 क्वेश्चंस फॉर अरिथमेटिक एंड पीएनसी प्रोबेबिलिटी में 4 to 5 क्वेश्चंस. तो आपका मेजर चंक जो है वो इधर ही खत्म हो जाता है. तो इफ यू चेक, आई हैव गिवन यू द डिस्ट्रीब्यूशन. यहाँ पे percentage profit and loss, numbers 1-2 questions, time and work, time and distance, quadratic, geometry, PNC, logarithms, mensuration, probability, coordinate geometry and so on. तो इसमें क्या होगा, देखो DI का 1 से 2 क्वेश्चंस आते हैं, डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट स्लॉट्स में डिफरेंट वेटेज है. 1 से 2 क्वेश्चंस DI का आता है. लॉगरिथम्स का एक क्वेश्चन जनरली आता है, और जो बचा हुआ क्वेश्चंस है लाइक 3 to 4 क्वेश्चंस, उसमें यू गेट ज्योमेट्री, यू माइट गेट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यू माइट गेट प्रोग्रेशंस, बाइनोमियल थ्योरम एंड सो ऑन. बट अंडरस्टैंड इसका वेटेज बहुत कम है. ठीक है, सो आपको किस पे हिट करना है, आपको हिट करना है ये अरिथमेटिक पे. ये जो 8 to 9 क्वेश्चंस है, पीएनसी प्रोबेबिलिटी एकदम परफेक्ट करके जाना. इंडिविजुअल टॉपिक्स में बात की जाए तो लॉगरिथम्स अच्छे से कर लो, बिकॉज द लॉगरिथम्स की जो क्वेश्चन आता है वो बहुत इजी लेवल का होता है, वो कैट लेवल नहीं होता है. तो लॉगरिथम हिट कर सकते हो, प्रोग्रेशंस पे आप स्कोर कर सकते हो. ज्योमेट्री नहीं करना है मत करो. अगर इवन इफ यू आर प्लानिंग टू डू इट, अगर सिर्फ बेसिक्स करके जाओगे तो भी चलेगा, एकदम डिटेल्स में ज्योमेट्री करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. ठीक है, सेट थियोरी का एक हाथ क्वेश्चन है, एंड देन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आया तो आया, कुछ स्लॉट में आया था, कोई स्लॉट में नहीं आया था. ठीक है, नाउ पहले ये डिस्ट्रीब्यूशन समझ लेते हैं हर सेक्शन का, देन आई विल हेल्प यू आउट विद द स्ट्रेटजी आल्सो कि व्हाट आर यू एक्सपेक्टेड टू डू. ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन व्हिच इज लॉजिकल रीजनिंग.
अब लॉजिकल रीजनिंग में देर आर 25 क्वेश्चंस, ठीक है, 25 क्वेश्चंस आते हैं लॉजिकल रीजनिंग में. नाउ एक्सप्लेनिंग यू द वेटेज, यू विल बी वेरी शॉक्ड. इसमें क्रिटिकल रीजनिंग के 8 to 9 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, क्रिटिकल रीजनिंग. सो आई होप यू गाइज हैव अ क्लियर आइडिया अबाउट क्रिटिकल रीजनिंग राइट नाउ. मतलब यहाँ पे देखिए, स्टेटमेंट कंक्लूजन, assumptions, course of action, cause and effect, general reasoning, paragraph conclusion, ये जो सारे हैं ये critical reasoning के questions हैं. तो 8 to 9 questions critical reasoning पे आते हैं, और 8 to 9 questions जो है that account for input output, plus that account for coding decoding, plus that account for number and letter series. ठीक है, ये सेकेंड हाईएस्ट वेट, मतलब हाईएस्ट वेटेज ही है. सो ये दिस इज द अदर सेक्शन जहां पे काफी स्ट्रॉन्ग वेटेज आता है. तो यू हैव टू बी गुड एट क्रिटिकल रीजनिंग, यू हैव नो ऑप्शन. ठीक है, क्रिटिकल रीजनिंग 8 to 9 क्वेश्चंस, इनपुट आउटपुट का एक सेट आएगा. नाउ लाइक यू कैन सी इन द डिस्ट्रीब्यूशन 1 to 2 क्वेश्चंस आया है. कोडिंग डिकोडिंग पे 2 से 3 क्वेश्चंस आया है. नंबर लेटर सीरीज पे देखो 3 क्वेश्चंस आए हैं. ठीक है, तो 8 to 9 क्वेश्चंस इसी में चले जाते हैं. तो टोटल आप पकड़ के चलो तो 16-17 क्वेश्चंस अगर मैंने इधर निकाल भी लिए तो आउट ऑफ 25 16-17 क्वेश्चंस तो यही हो गए. ठीक है, तो बचे हुए क्वेश्चंस में क्या क्या आता है. सो इफ यू चेक बचे हुए क्वेश्चंस में, यू गॉट ब्लड रिलेशन, यू गॉट लीनियर अरेंजमेंट, क्लॉक्स, कैलेंडर्स, ऑड वन आउट एंड सो ऑन. सिलॉजिज्म्स भी आता है. सी, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन मैंने दिया है, दिस इज कंसिडरिंग ऑल 3 स्लॉट्स ऑफ स्नैप. तो इसका टोटल एडिशन 25 शायद ना भी आए, उससे थोड़ा सा ज्यादा आएगा, बिकॉज अलग अलग स्लॉट्स में अलग अलग टॉपिक्स का वेटेज वाज डिफरेंट. बट कौन से टॉपिक्स आए थे in considering all the slots, I have mentioned all those topics. ठीक है, तो इसमें स्कोरिंग क्या हो जाता है, ये देखिए, ये सेक्शन भी बहुत स्कोरिंग है. क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स उसको परफेक्ट करके ही जाना है, उसको स्ट्रॉन्ग करना ही है, उस पे क्वेश्चन आएंगे ही. सिलॉजिज्म्स बहुत स्कोरिंग हो जाता है. ये लीनियर, सर्कुलर या फिर डिस्ट्रीब्यूशन, उसका एक पजल आता है. कोडिंग, ब्लड रिलेशंस इज वेरी वेरी इजी. सो दीज आर सर्टेन टॉपिक्स विच यू कैन रियली हिट ऑन कि ये तो अपने को क्लियर करना ही, ये निकालना ही है, बिकॉज दे आर वेरी स्कोरिंग. ठीक है, मूविंग ऑन टू योर थर्ड सेक्शन विच इज द VARC सेक्शन, which accounts for 15 questions, 15 marks. Now the thing is, you will be shocked to know that VARC में there is no RC. मतलब लास्ट ईयर कोई भी स्लॉट में RC ही नहीं आया था, which does not mean कि इस साल भी नहीं आएगा. माइंड यू, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कोई कंपल्शन नहीं है कि इस साल भी नहीं आएगा. आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है. बट माई पॉइंट इज, बहुत ज्यादा रिगरस स्टडी आरसी की मत करना, नॉट रिक्वायर्ड. ठीक है, बेसिक थोड़ा बहुत आरसी करके जाओ, दैट इज सफिशिएंट. The things which you need to focus on is this: grammar based questions, parts of speech हो गया, poem का standard word, fill in the blanks हो गया, spellings हो गया. These are the topics you need to focus on. ठीक है, क्योंकि क्या होता है, ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन हो गया या फिल इन द ब्लैंक्स हो गया या ये स्पेलिंग हो गया, ये बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं. एंड द गुड पार्ट इज दे आर वेरी लेस टाइम कंज्यूमिंग. ठीक है, ज्यादा टाइम लगता नहीं है, 30 सेकेंड्स में, 20 सेकेंड्स में ये सारे क्वेश्चन सॉल्वेबल होते हैं. ठीक है, तो यहाँ से टाइम सेव करके आप बाकी के सेक्शंस में लगा सकते हो. सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वांट, लॉजिकल रीजनिंग एंड VARC. Now let's discuss the strategy कि एग्जाम क्रैक कैसे होगी, कैसे प्रिपेयर करना है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसको अटेम्प्ट कैसे करना है, क्योंकि यहाँ पे मेजर मिस्टेक्स हो जाती है, समझ में नहीं आता कि कैसे अटेम्प्ट करना है. प्लीज अंडरस्टैंड, यू हैव 60 minutes एंड यू हैव 60 questions. ठीक है, पर मिनट पर क्वेश्चन. वैसे होता नहीं है 1 minute 1 question, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट देन दिस इज द आइडियल थिंग, राइट? Now the thing is, यहाँ पे there is no sectional cutoff like I told you. Sectional cutoff है नहीं. हमको SIBM पुणे ही जाना है, तो हमको कम से कम 42 से 43 तो स्कोर करना ही है. मान के चलो 42-43 स्कोर करना है. मैं क्या बोल रही हूँ, यहाँ पे सेक्शनल टाइमिंग भी नहीं है. प्लीज अंडरस्टैंड, देयर इज नो सेक्शनल टाइमिंग.
तो ऐसा नहीं है कि VARC के लिए 20 मिनट्स, इसके लिए 20 मिनट्स, उसके लिए 20 मिनट्स, देयर इज नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. You can switch between your sections as well. Nobody gonna tell you anything. कोई problem नहीं है, कुछ नहीं है. You can switch between the sections, but you have to be very choosy and very selective of the questions. देखिए, because you have given CAT, like most of you, I'm sure you would know that in DILR specifically, set selection was the most important thing. If you selected the right set, you could solve most of the questions correctly. Whereas if you solve the wrong set or the lengthy set, टाइम ही खत्म हो गया वहां पे और उसमें भी गड़बड़ हो गई. तो मेक श्योर कि वो मिस्टेक हमको अभी नहीं करनी है. और यहाँ पे और फोकस और प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ आपको पेपर सॉल्व करना पड़ेगा, बिकॉज 1 घंटा गाइज ऐसे निकल जाता है, वो समझ में ही नहीं आता है कि 1 घंटा कैसे चला गया. यू हैव ओनली 1 आवर. तो थोड़ी भी मिस्टेक हो गई, टाइम की प्लस माइनस हो गया, तो रिकवरी के लिए टाइम नहीं बचेगा हमारे पास. ठीक है, कैट में हम 3-4 मिनट या 5-6 मिनट वेस्ट भी हो गए थे, तो रिकवरी के लिए टाइम था. यहाँ पे उतना टाइम नहीं रहेगा. यू कैन नॉट अफोर्ड टू वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम. आई एम नॉट ट्राइंग टू स्केयर ऑल ऑफ यू, बट आई एम जस्ट गिविंग यू अ रियलिटी चेक कि दिस इज द सिचुएशन. तो मेरा स्ट्रैटेजी क्या रहेगा? व्हाट कैन आई रिकमेंड? सी, my first rule which I would like to tell you guys is start with the section which is your strength, please. Don't start with the section which might be your weakness, which you are not really good at, because starting के कुछ questions correct आना बहुत ज्यादा important है. क्या होता है, इनिशियल नर्वसनेस होती है, टेम्परामेंट थोड़ा सा हिला हुआ रहता है, एंड प्रोबेबली वी माइट नॉट बी इन द करेक्ट स्टेट ऑफ माइंड, और वी माइट बी नर्वस और एनीथिंग. सो टू लूजन आवरसेल्व्स अप, इट इज इम्पोर्टेंट दैट वी गेट द फर्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस करेक्ट, क्योंकि वहां पे पहले के कुछ क्वेश्चंस अगर करेक्ट हो जाते हैं, आपकी गाड़ी चालू हो जाती है, फिर वहां से गाड़ी भागने लगती है. लेकिन अगर स्टार्टिंग में गाड़ी ने प्रॉब्लम दिया, तो गाड़ी की रिकवरी के लिए टाइम नहीं बचेगा. तो आपको बहुत केयरफुली अटेम्प्ट करना पड़ेगा. सो माय पॉइंट इज, स्टार्ट विद अ सेक्शन व्हिच इज योर स्ट्रेंथ. इट कुड बी VA, इट कुड बी लॉजिक, इट कुड बी क्वांट, इट कुड बी एनीथिंग. नाउ सेकेंड थिंग, अब मैं क्या बोल रही हूँ सुनो. अगर आपने VA से स्टार्ट किया, फॉर एग्जाम्पल यू कुड स्टार्ट विद एनीथिंग. आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल. इफ सपोज यू स्टार्टेड विद VA, ठीक है, VA में कुछ क्वेश्चंस रहेंगे जो विद इन अ मिनट सॉल्वेबल है 100%. ठीक है, अब जैसे लाइक आई टोल्ड यू, ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस है, ये एक मिनट के अंदर अंदर सॉल्व हो सकता है. पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ये 1 मिनट के अंदर सॉल्वेबल है. सिनोनिम्स है, सिनोनिम्स यू ईदर नो द वर्ड और यू डोंट नो द वर्ड, यू कैन नॉट डू एनीथिंग मच अबाउट इट. आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता है, विच इज फाइन, बट यू कैन एटलीस्ट गो थ्रू द क्वेश्चन, समझ में आ जाएगा. स्टैंडर्ड वर्ड ऑर्डर, पोयम दी जाती है, पोयम का ऑर्डर और समथिंग दे विल आस्क. इडियम्स, फ्रेजेस, प्रोवर्ब्स हो गया. अभी इडियम्स, फ्रेजेस, प्रोवर्ब्स भी इट्स लाइक कि स्टूडेंट्स आस्क हम लोग कितना इडियम्स पढ़ेंगे, कितना प्रोवर्ब्स पढ़ेंगे. सो दिस इज वन कैटेगरी which even if you do not know, it is okay. See, synonyms is one category and idioms and proverbs is one category wherein आप कितना भी prepare करो, it will never be sufficient, because कोई भी word in this world can be asked as a synonym or as an idiom or anything. Any proverb can be given. So, but my point is, this section can be solved because RC नहीं है, तो all the questions can be solved within a minute. ठीक है, तो idiom आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया, मार्क मत करना unnecessary, बट देख के इंटरप्रेट कर सकते हो कि सॉल्वेबल है कि नहीं है. स्पेलिंग हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया. तो आई फील कि ये जो 15 क्वेश्चंस है, ये सारे के सारे विद इन अ मिनट, लाइक 1 मिनट पर क्वेश्चन सॉल्वेबल है. आई एम नॉट सेइंग कि 15 के 15 मार्क करके आने हैं. आई एम सेइंग दे कैन बी अप्रोच्ड एट वन गो. ठीक है, तो कंसिडर करो कि ये 15 में से इफ यू कुड गेट मी अराउंड 7 to 8 क्वेश्चंस करेक्ट. ठीक है, मेरे को 15 में से अगर VA बहुत स्ट्रांग है तो ऑब्वियसली यू कैन गो बियॉन्ड दिस फॉर श्योर. अगर नहीं भी स्ट्रांग है तो 7 to 8 क्वेश्चंस अचीव करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है. ठीक है, उसके बाद यू कैन मूव टू क्वांट, यू कैन मूव टू लॉजिकल रीजनिंग, इट डिपेंड्स ऑन यू.
सपोज इफ यू मूव टू क्वांट, ठीक है, सपोज इफ यू मूव टू क्वांट, मैं क्या बोल रही हूँ, इसमें गाइस 20 क्वेश्चंस है। आई हैव गिवन यू द डिस्ट्रीब्यूशन आल्सो। प्लीज अंडरस्टैंड ये 20 क्वेश्चंस में अराउंड 10 क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी वेरी इजी क्वेश्चंस, इजी लेवल क्वेश्चंस, ठीक है। 4 to 5 questions would be difficult questions. Difficult in the sense they will be lengthy. मतलब आपको टाइम लगेगा सॉल्व करने को, ठीक है। बचे हुए 4 to 5 जो है वो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस रहेंगे। तो मैं क्या बोल रही हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आया, सपोज टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन रीड करके पहले ये जज करो कि ये 1 मिनट में सॉल्वेबल है कि नहीं है। डोंट स्टार्ट सॉल्विंग डायरेक्टली, प्लीज नो। पहले सोचो 1 मिनट में सॉल्वेबल है क्या, अगर है उसको इमीडिएटली सॉल्व करो, ठीक है। 1 मिनट में सॉल्व हो ही जाना चाहिए। अगर नहीं है, सी अंडरस्टैंड, यू नो यू कैन सॉल्व इट, आपको पता है आपको आ जाएगा, लेकिन यू ऑल्सो नो दैट इट इज काइंड ऑफ लेंथी। आपको पता है कि ये टाइम कंज्यूमिंग है, ये 1 मिनट में सॉल्वेबल नहीं है, 1.5 मिनट में सॉल्वेबल नहीं है, इसको 2-2.5 मिनट लगेगा। व्हाट आई वुड रेकमेंड इज उसको मार्क करके आगे बढ़ जाओ। इमीडिएटली सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज गाइस हमें सेक्शन में टॉप नहीं करना है, हमको ओवरऑल 42-43 मार्क्स लाने हैं। तो हम 42-43 मार्क्स कहां से लाएंगे, वो एरिया से जो बहुत इजीली स्कोरिंग है। हमको डिफिकल्ट रास्तों पे नहीं चलना है, हमको इजी रास्तों पे चलना है पहले, ठीक है। सपोज क्वेश्चन नंबर 2 आया, लेट्स से टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, एंड इफ यू फील इट्स अ मॉडरेट क्वेश्चन और इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, मतलब मॉडरेट है, सॉल्वेबल है, लेकिन 1 मिनट में नहीं हो पाएगा, मार्क करो, आगे बढ़ो, देखना ही नहीं है, अब इमीडिएटली अभी के अभी देखना नहीं है, सॉल्व नहीं करना है, आगे बढ़ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 आया, लेट्स से लॉग्स का सम था, बहुत इजी था, इमीडिएटली सॉल्व कर लिया, आगे बढ़ गए। क्वेश्चन नंबर 4 आया, सपोज परसेंटेज का क्वेश्चन था, 1 मिनट के अंदर सॉल्वेबल था, सॉल्व कर लिया, आगे बढ़ गए, ठीक है। तो मैं क्या बोल रही हूँ, व्हेन यू सॉल्व क्वांट फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, ये तुम्हारा फर्स्ट राउंड होगा। So when you solve quant for the first time, out of 20 questions, I would expect you to solve around 6 to 7 questions in the first round. ठीक है, try to understand 6 to 7, क्योंकि 6 to 7 questions का 20 questions में से manageable है। और ये 6 to 7 questions कौन से होंगे, ये कहीं से भी हो सकते हैं, ये मेंसुरेशन हो सकता है, ये डेटा सफिशिएंसी हो सकता है, ये डीआई हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। बट अंडरस्टैंड दीज आर गोइंग टू बी द क्रीम क्वेश्चंस। क्रीम क्वेश्चंस आर द क्वेश्चंस व्हिच कैन बी सॉल्व्ड वेरी इजीली। मतलब आपको पता है कि ये बस 1 मिनट में हो जाएगा, या 30 सेकंड में हो जाएगा, या 40 सेकंड में हो जाएगा। तो वो क्रीम क्वेश्चंस हमको पिक करने हैं, उन्हीं को सॉल्व करना है। बाकी का पार्ट जो हमको मॉडरेट लगा, हम उसको मार्क करके छोड़ देंगे। जो डिफिकल्ट लगा, ऑब्वियसली कुछ क्वेश्चंस होंगे जो डिफिकल्ट लगेंगे या नहीं समझ में आए, उसको हम कुछ नहीं करेंगे, उसको हम स्मूथली इग्नोर करेंगे, ठीक है। वील जस्ट लीव इट, यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट, ठीक है। नाउ उसके तुरंत बाद आप मूव करोगे लॉजिक पे। फॉर एग्जाम्पल इफ लॉजिक इज योर लास्ट सेक्शन, ठीक है, लॉजिक में मैं बोल रही हूं कि आप सबसे पहले तो क्रिटिकल रीजनिंग कर लो, या जो इंडिविजुअल क्वेश्चंस है, मतलब ब्लड रिलेशन का सपोज सिंगल क्वेश्चन आया है, सिलॉजिज्म के इंडिविजुअल क्वेश्चंस है, क्लॉक्स कैलेंडर्स के इंडिविजुअल क्वेश्चंस है, वो सॉल्व करो, ठीक है। बिकॉज क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 2 के साथ कोई कनेक्शन नहीं होगा। तो ये जो सिंगल क्वेश्चन होंगे, क्रिटिकल रीजनिंग हो गया, ब्लड रिलेशंस हो गया, नंबर लेटर सीरीज हो गया, सिलॉजिज्म्स हो गया, they will not take a lot of time. If you know syllogisms because syllogisms is very scoring. If you know syllogisms well, if you know blood relations well, if you know your clocks and calendars very properly, ट्रस्ट मी, ये सारे के सारे क्वेश्चन 3 से 4 मिनट में हो जाएंगे। अगर 6 क्वेश्चन भी पूछे है ना, तो 4 से 5 मिनट में सारे हो सकते हैं। इट्स वेरी इजी, ठीक है। तो वो कर लो, क्रिटिकल रीजनिंग जो आ रहा है वो करो, जो नहीं आ रहा है ऑब्वियसली यू कैन टेक टाइम। उसके बाद फिर आप कोडिंग डिकोडिंग पे जाओ, और फिर आप नंबर लेटर सीरीज पे जाओ, एंड इनपुट आउटपुट पे जाओ। तो मेरा स्ट्रेटेजी क्या रहेगा, क्रिटिकल रीजनिंग पहले करना है, सिलॉजिज्म्स पहले करना है, ब्लड रिलेशंस पहले करना है, क्लॉक्स कैलेंडर्स पहले करना है। नाउ अब क्या किया आपने, सारे इंडिविजुअल क्वेश्चंस कर लिए। उसके बाद यू ईदर मूव टू इनपुट आउटपुट फर्स्ट, और यू मूव टू कोडिंग डिकोडिंग फर्स्ट। बिकॉज देखो कोडिंग डिकोडिंग ना गाइस 2 to 3 क्वेश्चंस आ रहा है, मतलब ये सेट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो इसमें चाइनीज कोडिंग या फिर अलग टाइप की कोडिंग, अलग अलग लॉजिक्स रहते हैं, अलग अलग पैटर्न से कोडिंग होती है।
सो यू नीड टू बी अवेयर ऑफ कौन से टाइप के कोडिंग पैटर्न्स पहले भी आ चुके हैं. द ओनली थिंग इज ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है. ठीक है, तो पहले सिंगल क्वेश्चंस कर लिए, फिर लेट्स से कोडिंग डिकोडिंग कर लिया, उसके बाद आप इनपुट आउटपुट पे जा सकते हो, या अगर कोई पजल है लीनियर सर्कुलर का वो कर सकते हो, एंड फाइनली यू कैन सॉल्व योर नंबर और लेटर सीरीज. नंबर और लेटर सीरीज कैसे होता है? सो फॉर एग्जाम्पल इफ आई गिव यू लेट्स से 5 हो गया, 12 हो गया, 19 हो गया, 26 हो गया, फाइंड द नेक्स्ट नंबर. तो यहाँ पे पैटर्न आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि +7 हो रहा है. Obviously, they're not going to ask you such easy questions, but you have to figure out which is the next number and the next letter in the series. Remember one thing, ये नंबर सीरीज कभी कभी काफी ट्रिकी हो सकता है. ठीक है, हमको लगता है कि बहुत सॉल्वेबल है यार, इसमें क्या ही लॉजिक पूछ लेंगे. कभी कभी बहुत अतरंगी लॉजिक होता है, कभी कभी बहुत वियर्ड लॉजिक होता है, और वो इमीडिएटली क्लिक नहीं होता है. ठीक है, सो इस पे क्योंकि एक बार अगर हमने इस पे टाइम इन्वेस्ट किया तो क्या हो जाता है, कभी कभी हम अटक जाते हैं कि अरे लॉजिक क्यों नहीं आ रहा है, इतना सिंपल है, ये है वो है, वी कीप ऑन थिंकिंग थिंग्स, और उस प्रोसीजर में बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है. ठीक है, तो आई वुड रिकमेंड पहले बाकी का करो. ठीक है, उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग, इनपुट आउट, एंड फाइनली नंबर एंड लेटर सीरीज. ठीक है, नाउ इसके वन शॉट में व्हेन आई टॉक अबाउट, पहले तो इंडिविजुअल क्वेश्चंस करोगे. इंडिविजुअल क्वेश्चंस में अभी जैसे क्लॉक्स कैलेंडर्स हो जाएगा, सिलोजिज्म्स हो जाएगा, ब्लड रिलेशंस हो जाएगा. ठीक है, सीआर में से 8-9 क्वेश्चंस में से लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने अराउंड 4 क्वेश्चंस कर लिए, तो 4 और 5 या 4 और 6 कर लो, तो सपोज 10 क्वेश्चंस तो हो गए. 10 क्वेश्चंस के बाद आप बड़े बड़े क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हो. इनपुट आउटपुट हो गया, कोडिंग डिकोडिंग, एंड नंबर लेटर सीरीज हो गया. ठीक है, सो देन यू विल सॉल्व द रिमेनिंग probably 7 to 8 questions. ये इसके हो गए, तो टोटल हो गए अराउंड 17 to 18 questions. ठीक है, टोटल हो गए 17 to 18 questions. Now my point is, देख you go to quant again, वापस क्वांट की तरफ जाओ, क्योंकि वीए तो हम पूरा कर चुके थे. ठीक है, नाउ वापस क्वांट की तरफ जाओ, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि लेट्स से इनपुट आउटपुट थोड़ा लेंदी लग गया, या फिर लेट्स से नंबर लेटर सीरीज थोड़ा डिफिकल्ट आ गया, या कोडिंग डिकोडिंग नहीं समझ में आ रहा है, या काफी बड़ा लग रहा है, तो इसको होल्ड पे रख के आप पहले क्वांट पे मूव कर सकते हो. सो दैट विल बी योर कॉल, बीच में क्वांट की तरफ वापस जाना है या पहले ये कंप्लीट करके फिर उधर जाना है. जो भी लेंदी लगेगा, देखो कुछ भी लेंदी हो सकता है, इनपुट आउटपुट भी लेंदी हो सकता है, कोडिंग लेंदी हो सकता है, या फिर क्वांट के कुछ क्वेश्चंस लेंदी हो सकते हैं. दैट्स गोइंग टू बी योर डिसीजन कि आपको कब किधर स्विच करना है, बट योर स्विचिंग हैज टू बी स्मार्टली चोजन. राइट, नाउ माय पॉइंट इज, अभी सपोज आप वापस क्वांट पे चले गए, तो क्वांट के क्रीम क्वेश्चंस तो हमने कर लिए थे. कंसिडरिंग, अभी मैं कंसिडर करके चल रही हूं कि आपने इनपुट आउटपुट कोडिंग डिकोडिंग कर लिया है. नहीं भी किया है, नो प्रॉब्लम, पहले क्वांट पे आ गए तो भी चलेगा. अब आपको देखो, हमने कितने क्वेश्चंस करे थे, 6 to 7 क्वेश्चंस कर लिए थे. अब जो मॉडरेट लेवल के मार्क करके रखे थे, अराउंड 6 to 7 क्वेश्चंस उसके भी करने हैं. ठीक है, जो मॉडरेट लेवल के थे, जो आपको लग रहा था कि 1.5 मिनट या 2 मिनट लग सकता है, तो अभी उस पे वापस आओगे. तो वो क्वांट के जो भी क्वेश्चंस हैं वो करके इधर यू गो बैक टू योर इनपुट आउटपुट कोडिंग डिकोडिंग अगर नहीं किया था, या फिर इधर ही अपना सेक्शन और पेपर एंड कर सकते हो. तो हम व्हाट एम आई टारगेटिंग, सी आई एम टारगेटिंग क्वांट का अराउंड 12 to 3 क्वेश्चंस ओवरऑल, परफेक्टली डन. ऑब्वियसली इससे ज्यादा अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन 12 to 13 क्वेश्चंस करेक्ट होने चाहिए. VARC का आई एम एक्सपेक्टिंग अराउंड 7 to 8 क्वेश्चंस, क्योंकि देखो 15 क्वेश्चंस ये ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है. द ओनली प्रॉब्लम इज गोइंग टू बी एक्यूरेसी. सो इफ यू आर गुड एट इट, ये बहुत जल्दी स्कोर हो जाएगा. इफ यू आर नॉट गुड एट इट, तो 7 to 8 क्वेश्चंस आई थिंक इज प्रीटी मच मैनेजेबल, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट नहीं है. ठीक है, उसके बाद अगर हम LR की बात करें तो 25 क्वेश्चंस है. 25 क्वेश्चंस में से गाइज वी हैव टू स्कोर अराउंड, आप पकड़ के चलो 19 to 20 क्वेश्चंस करेक्टली. ठीक है, 19 to 20 क्वेश्चंस करेक्टली, तब जाके हम, अगर सो फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक द हायर लिमिट, अगर मैं इधर हायर लिमिट लेती हूँ तो 28 और 13 हो जाता है 41. तो ये स्ट्रैटेजी के साथ आप 41 42 का परफेक्ट अटेम्प्ट विद गुड स्कोर कर पाओगे. मतलब आई एम नॉट सेइंग इतने ही करो, ऑब्वियसली आप ज्यादा करो, ज्यादा अटेम्प्ट हो भी जाता है, 50 52 जो भी है, लेकिन
उतना अटेम्प्ट करने के बाद ये सारे क्वेश्चंस में परफेक्ट एक्यूरेसी इतने क्वेश्चंस में होनी चाहिए, तब जाके आपका SIBM पुणे क्रैक हो सकता है। ठीक है, सो टॉपिक्स कौन से इंपॉर्टेंट है जो एकदम आपको मतलब इन एंड आउट आने ही चाहिए, मतलब एकदम पी लो जो टॉपिक्स जो बोलते हैं, वो है एरिथमेटिक का सेक्शन क्वांट में, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्वांट में। ठीक है, ये एकदम इन एंड आउट आना चाहिए, एकदम परफेक्ट। लॉगरिथम्स आ जाएगा तो बहुत स्कोरिंग होता है। डेटा इंटरप्रिटेशन डिपेंड्स, बट प्रोग्रेशंस का एपीजीपी के फॉर्मूलाज कर लेना, दैट इज वेरी वेरी स्कोरिंग। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग की बात की जाए तो लॉजिकल रीजनिंग में सिलोजिज्म्स के रूल्स रहते हैं, रूल्स अच्छे से समझ लेना। लीनियर सर्कुलर, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स के कॉन्सेप्ट अच्छे से कर लो, ब्लड रिलेशंस के कॉन्सेप्ट कर लो, कोडिंग डिकोडिंग के टाइप्स देख लो, और क्रिटिकल रीजनिंग पे प्लीज थोड़ा काम करो, क्योंकि क्रिटिकल रीजनिंग देखो यहाँ पे भी वेटेज ज्यादा है। आगे की जो एग्जाम्स होंगी, अगर कंसिडर सी इफ यू इवन इफ यू कंसिडर सीईटी, और इफ यू कंसिडर एनमैट, इफ यू कंसिडर सीमैट, सब में क्रिटिकल रीजनिंग का वेटेज इज गोइंग टू बी हाई। ठीक है, तो क्रिटिकल रीजनिंग पे काम कर लोगे तो ये 8 to 9 क्वेश्चंस में अगर आपका एक्यूरेसी काफी अच्छा आता है, 100% you will be able to score better than your peers, बिकॉज बहुत सारे बच्चों का स्कोर क्रिटिकल रीजनिंग में ही डाउन होता है। ब्लड रिलेशन देखो सब लोग कर लेते, सिलोजिज्म सब लोग कर लेते हैं, नंबर सीरीज भी सब लोग कर लेते हैं, इनपुट आउटपुट भी हो जाता है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आ जाता है। क्रिटिकल रीजनिंग में एक्यूरेसी नहीं आती है, तो अगर वहां पे एक्यूरेसी आ गई, लेट्स से एटलीस्ट 85 to 90%, 100% आपका स्कोर शूट अप हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक चैलेंजिंग बट स्कोरिंग सेक्शन हो जाता है। And as far as VARC is concerned, I would recommend please focus on grammar, please focus on fill in the blanks, focus on spellings and parts of speech. Synonyms और idioms का ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते। ठीक है, so according to me, this strategy should definitely fetch you SIBM Pune. If you have any doubts with respect to anything, with respect to preparation, with respect to study material, with respect to anything, feel free to ask. Also, a humble request, please share this video with any of your friends, family who might be preparing for competitive exams, because it will be very useful to them. और अगर वीडियो पसंद आया है, if you felt that it was very useful, please make sure you give it a thumbs up and do subscribe to my channel. Thank you so much. Bye bye. Take care.